Okay, so good morning again. Students, we were discussing on the cell biology, the botany paper 1, that is cell biology. In unit 1, we have to discuss different cell organelles like cell membrane, and in terms of the plant cell, the cell wall also, nucleus, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, ribosomes, and all that. So we have done with the cell wall, the structure and composition of the cell wall and the functions of cell wall, as well as the important cell organelle. The most important cell organelle is the cell membrane. Function wise सबसे important होती है cell membrane. We have also discussed that. So if you have missed 1 or 2 lectures or earlier lectures, you can watch the recordings. YouTube channel पे separate playlist है cell biology, उसमें आप देख सकते हैं. Okay. So today we will start with a different or a new cell organelle. That is very, very important for the life and very, very important for the plants. Can you guess that organelle? Okay, so I am getting right answers. That organelle is the chloroplast. See, in the ecological system, plants are the producer. कोई भी ecosystem हो, किसी भी ecosystem की मैं बात करूं, like pond, desert or any terrestrial grassland, forest, किसी भी ecosystem में tropic level पे जो producers होते हैं, producers are mainly the plants. Exceptionally a few, all of the plants are autotrophic. Plant अपना food खुद prepare करते हैं since they are producers. In each trophic level, the primary consumers consume the food from producers, and so on, the secondary, tertiary, and top carnivores. Okay, this is a food chain. Means the plants are autotrophic. Why they are autotrophic? Because they are photosynthetic. They have a phenomena of photosynthesis in which they can convert the solar energy into the chemical energy, or the radiant energy into chemical energy. That process of photosynthesis is carried out by a special pigment, that is chiefly the chlorophyll, the chief photosynthetic pigment, chlorophyll. Why it is called chloro? Due to the presence of green color. Chlorophyll are generally of green color. They absorb the light of blue and red light, and they just reflect the green light. That's why they are green. So this chlorophyll is mainly present in this organelle, that is the chloroplast. So chloroplast is indirectly, or we can say directly, responsible for the life, because chloroplast having chlorophyll will be responsible for photosynthesis, and photosynthesis is the basis of life. अगर chloroplast नहीं होता, animal cell की ही तरह plant भी खुद food नहीं बना पाते, so there will be no possibility of life. That's why it is a very important organelle for plants as well as the life, or the human or animals. Okay, so let's just discuss the meaning, the literal meaning of the chloroplast. Chloroplast is made up of 2 words, the chloro and plast. Okay, chloro means green and plast means forming, which forms something. Those green parts which form something are called chloroplast. Okay, so what they are forming? They are forming the food. Okay, this is the meaning of chloroplast. Okay, so we are discussing the meaning of this word. This is a Greek word. This chloroplast is a Greek word. Okay, if I talk about the discovery of the chloroplast, so this organelle was discovered by von Moll in 1837. Okay, chloroplast was discovered by von Moll in 1837. It is a life supporting organelle, very, very important organelle for the plant, as I told you earlier. So this was the meaning of the chloroplast. There is a particular word, that is plastid. So the most important type of plastids is chloroplast. So we will understand that what is plastid. Plastids जो होते हैं pigment containing organelle होते हैं. Pigment containing organelle. Those pigments may be photosynthetic or may be non-photosynthetic.
Okay, those pigments may be colored or those pigments may be non-colored. जो नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो कलर्ड भी हो सकते हैं और नॉन कलर्ड भी हो सकते हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कलर्ड ही होते हैं. तो along these plastid, the pigment containing organelles, the most important is the chloroplast. Okay, the chloroplast itself is a pigment photosynthetic plastid. तो एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है. ओके, एक वर्ड आता है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो नॉन कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं. तो ल्यूकोप्लास्ट भी प्लास्टिड्स हैं और क्लोरोप्लास्ट भी प्लास्टिड हैं. ओके, सो प्लास्टिड इज अ डिफरेंट थिंग, क्लोरोप्लास्ट इज अ डिफरेंट थिंग. Next we will talk about the number of chloroplast in a plant cell. See, very simply, since it is a cell organelle, okay, so unlike the other organelles, it is embedded in the cell. Suppose this is plant cell having a cell wall, cell membrane, the cytoplasm, and in the cytoplasm the chloroplast is also embedded like other cell organelles. In plant cells mainly the vacuole is there, nucleus is there, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria, and the chloroplast. So the chloroplast are also embedded in the cytoplasm. The number of cytoplasm per cell may be a single, okay, generally lies from 1 to thousands of chloroplast. Maybe single. Generally, the most common condition is 20 to 40 chloroplast per cell. Single chloroplast is present in a algae, that is Calamidomonas. Calamidomonas एक algae होती है, green algae है. Okay, उसके अंदर single chloroplast होता है, cup shaped होता है. मोस्ट कॉमन कंडीशन है हायर प्लांट्स में, जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनमें 20 to 40 जनरली. हायर प्लांट्स मींस एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ओके, उनमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होते हैं. और कुछ में आपका थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, 1000 ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल. जैसे कि एक प्लांट होता है कैस्टर एरंड, जिसको हम बोलते हैं यूफॉर्बिएसी का मेंबर है, उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज्यादा होता है. ओके, कैस्टर इज ए कॉमन नेम, नो नीड टू अंडरलाइन. सो द कैस्टर और द रिसिनस कम्युनस एरंड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल हो सकते हैं. मोस्ट कॉमन इज 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल. ओके, जनरली जब हम सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम एक ही क्लोरोप्लास्ट दिखाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग इनफ स्पेस टू शो दैट ऑल 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट. इस तरह से अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाएं एक ही डायग्राम में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी थाउजेंड्स टू हंड्रेड्स टू थाउजेंड हो सकता है, बट जनरली हम रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ही दिखाते हैं. एक्चुअली में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं. एंड इन एल्गी लाइक कैलामाइडोमोनास, उनके अंदर आपका क्या होता है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, दिस वाज द नंबर इज क्लियर टू यू? चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से. यस, इनो WBC में होते हैं प्लास्टिड्स. यहां तक क्लियर है बेटे? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. The most common shape is the oval disc-like. Okay. Other than that, the chloroplast may exist in. The chloroplast may be spherical. In some eukaryotic algae, the chloroplast is spherical. In some algae, it is cup-shaped, like in Calamidomonas. Okay. It may be oval shape, the most common. It is disc-shaped. There is a difference between cylinder and disc. This is a cylindrical shape. A cylinder is having radius as well as the height. Okay, a cylinder is having radius as well as the height, but a disc is having only radius.
नेग्लिजिबल हाइट, फॉर एग्जांपल द कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी या डीवीडी जो होते हैं, ठीक है, आजकल इतने कॉमन नहीं है, हमारे जमाने में तो बहुत कॉमन होते थे, आजकल तो मल्टीमीडिया का जमाना है, एवरीथिंग इज इन फोन। तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं, दे आर डिस्क, दिस इज डिस्क शेप, अ सिलेंडर विच इज नॉट हैविंग अ हाइट और द नेग्लिजिबल हाइट। सो डिस्क शेप हो सकते हैं एंड ओवल शेप हो सकते हैं, रिबन शेप भी हो सकते हैं, रिबन शेप भी हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, जनरली थिकनेस की मैं बात करूं तो थिकनेस होती है आपकी 4 to 6 नैनोमीटर। दिस इज लेंथ, सॉरी, दिस इज लेंथ एंड थिकनेस होती है 1 नैनोमीटर। ओके, सपोज में डिस्क शेप की बात करें या ओवल की बात करें तो थिकनेस, दिस थिकनेस वुड बी 1 नैनोमीटर। ओके, 1 to 5 नैनोमीटर, कुछ में 5 नैनोमीटर तक भी हो सकती है थिकनेस। एंड दिस लेंथ, दिस इज लेंथ, द लेंथ इज 4 to 6 नैनोमीटर। ओके, सो दिस इज द रेंज, जनरली 1 नैनोमीटर थिक एंड 4 to 6 नैनोमीटर लॉन्ग। So this is the shape and this is the dimensions about the chloroplast. Clear है यहां तक? Okay, good. देखिए शेप की या साइज की अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंड करता है लाइट की कंसंट्रेशन पे। ओके, सीओफाइट्स जो होते हैं या आपके शेड लविंग प्लांट्स जो होते हैं, शेड लविंग प्लांट्स जो शेड के अंदर ही मिलते हैं, उनको लाइट गेन करने के लिए, ठीक है, ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। अगर वो जो शेड में मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो क्लोरोफिल होंगे उनका साइज क्या होगा, बिगर। ठीक है, जो लाइट प्लांट्स होते हैं उनका क्लोरोफिल, उनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका साइज स्मॉल होता है। कंपैरेटिवली जो शेड प्लांट्स है उनमें बिगर साइज के क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। प्लस क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो शो मूवमेंट्स, ऑटोटॉनिक मूवमेंट्स शो करते हैं। क्लोरोप्लास्ट लाइट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपने आप मूव करते हैं। ठीक है, देखिए फोटोसिंथेसिस की मेन ऑर्गेनेल ये क्लोरोप्लास्ट, सभी जानते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस होते हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस होते हैं क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, तो नेसेसरली लाइट तो चाहिए क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट लव्स लाइट। तो लाइट जब आती है, अगर लाइट सारी की सारी एक ही प्लेस पे आए, क्लोरोफिल पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आए, अभी हम इसको पढ़ेंगे कि अदर पिगमेंट्स हेल्प करते हैं इसको फोटो ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए, तो ये फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा लाइट की प्रेजेंस में, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा या ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके, तो अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट है, इफ द लाइट इंटेंसिटी इज टू मच, तब भी क्लोरोप्लास्ट मूव करते हैं, उससे दूर जाएंगे अगर ज्यादा ही लाइट है तो। और बहुत कम लाइट है, ओके, तो लाइट नेसेसरी भी है, तो उसके पास भी मूव करेंगे। तो इस तरह का मूवमेंट शो करते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए क्या कंडीशन होगी, सपोज दिस इज द साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, दिस इज वन क्लोरोप्लास्ट, दिस इज अनदर क्लोरोप्लास्ट, दिस इज अनदर एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट है। अब अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट है तो डायरेक्टली आएगी, तो क्या होगा, अगर ज्यादा इंटेंसिटी तो मैक्सिमम लाइट पूरी की पूरी सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, सारी क्लोरोफिल पे ही क्या होगी, स्कैटर्ड होगी आके। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं, उस एक्सेस ऑफ लाइट से बचने के लिए मूव कर जाते हैं वॉल्स की तरफ और पैरेलली टू द वॉल्स। तो क्लोरोप्लास्ट इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, दिस क्लोरोप्लास्ट, दिस क्लोरोप्लास्ट, दिस क्लोरोप्लास्ट एंड दिस क्लोरोप्लास्ट। अब क्या होगा, देखिए मिनिमम लाइट, ये सारी लाइट तो साइटोप्लाज्म से क्रॉस हो गई, क्लोरोप्लास्ट पे मिनिमम लाइट आई केवल कहां, इस एरिया पे, इस सरफेस एरिया। पहले यहां लाइट आ रही थी, अब केवल यहां लाइट आ रही है। ठीक है, तो बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट में उतनी ही लाइट इनको चाहिए जितना लाइट रिएक्शंस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अदर लाइट को जो इसको नुकसान पहुंचा सकती है, दैट कैन फोटो ऑक्सीडाइज द क्लोरोफिल, उससे बचने के लिए क्लोरोप्लास्ट इस अरेंजमेंट से हटके पैरेलल हो गए, किसके, वॉल्स के पैरेलल हो गए। क्लियर है? इससे अपोजिट जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी,
जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी तब क्या होगा, अब जितनी भी लाइट आ रही है, पहले ही बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, तो क्लोरोफिल चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लाइट को हम क्या करें, एब्जॉर्ब करें, फिर इस तरह से अरेंज हो जाएंगे वापस, सो दैट इवन द लेस कंसेंट्रेशन ऑफ लाइट, लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट दे कैन गेन, कम से कम इंटेंसिटी की लाइट को भी वो ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकें। इसलिए क्लोरोप्लास्ट इस तरह से परपेंडिकुलरली टू द वॉल, वॉल के परपेंडिकुलरली क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ओके, दिस इज ऑटोटॉनिक मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जब भी कंसर्न सेमेस्टर्स में आएगा तो वहां पे भी एग्जांपल आता है ऑटोटॉनिक मूवमेंट का, द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट आर वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Okay, so chloroplasts are also the membrane-bound organelles like endoplasmic reticulum, mitochondria, nucleus. Okay, so it would having a membrane system. It is bimembrane, outer membrane as well as the inner membrane. So we will draw the outer membrane. It is having a outer membrane. Also, it is having a inner membrane. There is a large intercellular space between these two membranes. Okay, this is membrane system. This is outer membrane. This is inner membrane. And in between the two membranes, like also in mitochondria, there is an intermembrane space which is quite high as compared to mitochondria. So this is intermembrane space. This is the intermembrane space. The fluid or the you can say matrix, the fluid or matrix of the chloroplast is called stroma. The liquid inside is called the stroma. Like the cytoplasm is for cell, matrix is for mitochondria, and the fluid of the chloroplast is called stroma. We can also say matrix, but we use the term matrix for the mitochondria. So avoid confusing, we particularly use the term stroma for the chloroplast. Okay, so stroma is all the fluid that is embedded in the vacant space of the chloroplast. So this is the major organelle, the most important part of the, not we can say important, the major part in the chloroplast is stroma. Okay, in stroma there is a lamellar system. In stroma, because chloroplast is photosynthetic, it will acquire light. There will be the presence of light reactions in the chloroplast. So for the particularly the site of light reactions, डार्क रिएक्शंस तो डायरेक्ट स्ट्रोमा में ही होती हैं, लाइट रिएक्शंस के लिए लैमेलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। लैमेलर सिस्टम की यूनिट होती है थैलेकॉइड्स। तो प्लेट लाइक, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं थैलेकॉइड्स। दिस इज वन थैलेकॉइड। थैलेकॉइड भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, थैलेकॉइड में भी मेम्ब्रेन होती है। दिस इज मैग्निफाइड व्यू थैलेकॉइड। ठीक है, थैलेकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और ल्यूमन। थैलेकॉइड, एक थैलेकॉइड भी मेम्ब्रेन बाउंड है, दो मेम्ब्रेन है, आउटर इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, और सेंटर में क्या है, ल्यूमन, वैकेंट स्पेस जो है वो ल्यूमन है। तो एक थैलेकॉइड दूसरे थैलेकॉइड के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। सभी में मेम्ब्रेन नहीं दिखाऊंगा, एक में दिखा दिया मैंने, बाकी उसको डिटेल ड्रॉ करेंगे। कुछ थैलेकॉइड एक्सपेंडेड होते हैं इस तरह से, ठीक है। These are the group of thylakoid. The thylakoids are stacked one above each other. A membranous sac-like structure. A membranous sac-like structure is thylakoid, which is the site of light reactions. Many thylakoids are stacked above one another. एक के ऊपर एक place है, stacked above one another to form a unit that is called granum.
This unit, the collection of thylakoids is called granum. Granum is a singular word. Okay, granum is a singular word. This individual is thylakoid. Thyla, Thylakoid, thylakoid. Disc-like structure is thylakoid, site of light reactions. The group of thylakoids is called granum, which is a singular word. There will be many granum. Okay, many granum, 10 to 100 granum per chloroplast. एक क्लोरोप्लास्ट में भी बहुत सारे ग्रेनम होते हैं. इट मींस मैनी थैलेकॉइड्स. ग्रेनम ही ज्यादा है तो थैलेकॉइड तो और भी ज्यादा होंगे. सम थैलेकॉइड्स आर एक्सपेंडेड लाइक दिस. इस तरह से एक्सपेंडेड होते हैं और कनेक्ट होते हैं दूसरे थैलेकॉइड या दूसरे ग्रेनम से. See, these bundle, this single unit is thylakoid. There are many thylakoids in this, many thylakoids in this, and many thylakoids in this. Individually, one thylakoid is having an outer membrane, inner membrane, and lumen. Okay, the membrane of thylakoid, this, the inner, outer, and intermembrane, this joint membrane, this thick membrane is the site of light reactions. This thing you should remember. फोटोसिंथेसिस पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट में होता है. पर्टिकुलरली लाइट रिएक्शंस होती हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में. यहाँ पे बहुत सारे फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 2 and 1, और इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स हैं जो हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. डार्क रिएक्शंस होती है डायरेक्ट स्ट्रोमा में. ये जो लिक्विड है बाहर सारा, दिस इज स्ट्रोमा. ग्लूकोज बनता है यहाँ पे, यानी कार्बन का फिक्सेशन, CO2 का फिक्सेशन होता है यहाँ पे. स्ट्रोमा में होता है रुबिस्को, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, जो CO2 को एक्सेप्ट करके C3 साइकिल के थ्रू फूड बना देता है. ठीक है. तो वो सब काम स्ट्रोमा में हो रहा है. अब थैलेकॉइड्स का ग्रुप कहलाता है ग्रेनम. दिस इज 1 ग्रेनम, 2 ग्रेनम, 3 ग्रेनम. ग्रेनम को कलेक्टिवली बोलते हैं ग्रेना. प्लूरल है ग्रेना. ग्रेना वर्ड इज प्लूरल, ग्रेनम इज सिंगुलर. ये सभी मिलके क्या कहलाएंगे कि हाँ यूनिट क्या है, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना है जो लाइट रिएक्शंस की साइट है. डायरेक्टली ये बोल दिया जाता है. तो ग्रेना ही लाइट रिएक्शंस की साइट है. ठीक है. और मोर एग्जैक्टली ग्रेना में भी थैलेकॉइड्स और थैलेकॉइड में भी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. चलिए, दो थैलेकॉइड को कनेक्ट करते हुए ये कुछ थैलेकॉइड जो इस तरह से हैं आपस में दो ग्रेनम्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इनको बोला जाता है थैलेकॉइड लैमिले. इनको बोला जाता है थैलेकॉइड लैमिले. यानी ये भी थैलेकॉइड्स ही हैं, पर कुछ थैलेकॉइड क्या हो गए, एक्सपैंड हो गए टू कनेक्ट वन ग्रेनम विद अनदर ग्रेनम. ओके. इनको स्ट्रोमा लैमिले भी बोला जाता है क्योंकि ये लैमिले स्ट्रोमा के अंदर है तो सारे स्ट्रोमा में, पर पर्टिकुलरली इनको सराउंड कौन कर रहा है, स्ट्रोमा ही सराउंड कर रहा है, ना कि एक दूसरा थैलेकॉइड. ठीक है. एक थैलेकॉइड को यहाँ पे तो दूसरा थैलेकॉइड सराउंड कर रहा है, बट यहाँ पे मोर एग्जैक्टली स्ट्रोमा ही सराउंड कर रहा है, इसलिए स्ट्रोमा लैमिले भी बोलते हैं. ठीक है. अगर आप और भी डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं पर्टिकुलरली, तो वो थैलेकॉइड्स जो डायरेक्ट स्ट्रोमा में यहाँ पे कनेक्टेड है मेम्ब्रेन से, उनको आप स्ट्रोमा लैमिले बोल सकते हैं. मोर एग्जैक्टली स्ट्रोमा लैमिले. और वो लैमिले जो दो थैलेकॉइड्स को कनेक्ट कर रहा है उसको आप थैलेकॉइड लैमिले बोल सकते हैं. मोर एग्जैक्टली. अदरवाइज दोनों ही चीजें सही हैं. इसको भी हम स्ट्रोमा लैमिले बोल सकते हैं, इसको भी स्ट्रोमा लैमिले. ठीक है. या दोनों को ही थैलेकॉइड लैमिले बोल सकते हैं. मोर एग्जैक्टली जो डायरेक्ट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है थैलेकॉइड, उसको स्ट्रोमा लैमिले हम बोले. और जो स्ट्रोमा लैमिले दो थैलेकॉइड्स को कनेक्ट कर रहा है वो थैलेकॉइड लैमिले कहलाएगा. ठीक है. तो सिंपल थैलेकॉइड्स और लैमिले थैलेकॉइड्स, दो तरह के थैलेकॉइड हैं क्लोरोप्लास्ट में. ओके. इनका भी इंपॉर्टेंस है, हम डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंस है. ये जो थैलेकॉइड होते हैं दूसरी तरह के थैलेकॉइड लैमिले, इनके अंदर केवल फोटोसिस्टम 1 मिलता है.
केवल फोटोसिस्टम 1 मिलता है। फोटोसिस्टम 1 होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। जब फोटोसिंथेसिस में अगर ये थैलेकॉइड डैमेज हो जाए, ठीक है, अगर ये डैमेज हो जाए तो लाइट रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी, तो फिर बैकअप फोटोसिंथेसिस होता है। तो बैकअप कहां पे होता है? यहाँ पे, जहां पे फोटोसिस्टम 1 है, ठीक है। फोटोसिस्टम 1 फिर भी फोटोसिंथेसिस करके देगा, हालांकि वो ना तो ज्यादा एनर्जी देगा ना ऑक्सीजन गैस देगा। बैकअप फोटोसिंथेसिस में या साइक्लिक पीपीआरएल में, आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, साइक्लिक में केवल PS1 होता है, नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। फोटोसिंथेसिस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, हम अभी केवल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो केवल बैकअप फोटोसिंथेसिस कहां होता है? आपका स्ट्रोमा लैमेले या थैलेकॉइड लैमेले में। और नॉर्मल फोटोसिंथेसिस पूरा का पूरा कहां होता है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, लाइट रिएक्शंस। चलिए क्लियर है यहां तक? Okay, so next after the thylakoids, we are having the outer membrane, inner membrane, intermembrane space, the stroma, granum, the plural grana, individual units, the thylakoids, thylakoid lamellae, stroma lamellae. After that, there is one more thing that is present in the stroma, which makes chloroplast semi-autonomous body. We will discuss it separately, that why chloroplast is a semi-autonomous organelle, or what are semi-autonomous organelles. The another is the mitochondria along with the chloroplast, that we will discuss tomorrow. But there is a presence of DNA, okay, the nucleic acids, and particularly the DNA. The DNA is also present in stroma. The genetic material, that is mainly the DNA. This is not genetic material, the genetic DNA, the nuclear DNA is the genetic material. जो DNA nucleus में होता है, that is genetic material. But it is also having an importance in the plants, like DNA is also present in the mitochondria, that we will going to discuss tomorrow. So in the structure of chloroplast, there are many things. Membranes, okay, the thylakoids, which are the site of light reactions, the stroma, which is the site of dark reactions. Why the dark reactions means C3 cycle is occurring inside stroma? Because it is having so many enzymes also, okay. Along with that, there are some starch granules also. There are some starch granules also present in stroma. ठीक है, स्टार्च के पैकेट्स, जहां स्टार्च स्टोर हो रहा है, फूड कहां बनता है? क्लोरोप्लास्ट में बनता है, तो स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, ओके। एंड वन लास्ट थिंग्स इज द राइबोसोम्स। बैक्टीरियल राइबोसोम होते हैं एक तरह से 70S टाइप के, ठीक है, 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट में। So we can quickly summarize these things: the membranes, the thylakoid granum, thylakoid lamellae, DNA, and starch granules, along with the 70S ribosomes. This thing to be remembered is that plant cells having 80S ribosomes in the cytoplasm, okay, or at the endoplasmic reticulum. But in the chloroplast, the ribosomes are of 70S type, जो कि बैक्टीरिया में मिलते हैं, ठीक है। So this is the structure of chloroplast. We can write some parts. If this structure is clear to you, I can rough here, and I can write some parts and some data, like outer membrane, okay. Outer membrane is smooth, differentially permeable, easily molecules transport हो जाते हैं, बस कुछ large size molecules नहीं होते, otherwise maximum number of molecules are passed through the outer membrane. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन की थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो 60 to 80 एंगस्ट्रॉम, 0.6 to 0.8 नैनोमीटर या 60 to 80 एंगस्ट्रॉम जनरली इसकी क्या होती है? थिकनेस होती है, बहुत थिन होती है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जनरली 100 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, ठीक है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ज्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू मेम्ब्रेन इटसेल्फ। खुद इनर मेम्ब्रेन भी 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। तो मेम्ब्रेन जनरली 60 एंगस्ट्रॉम एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस 100 to 150 एंगस्ट्रॉम जनरली क्या होता है? थिक होता है, ओके। इनर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन में कुछ पैकेट्स होते हैं, कुछ वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम पेरिफेरल रेटिकुलम बोलते हैं,
पेरिफेरल रेटिकुलम, पेरिफेरल रेटिकुलम। जिस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल्स होते हैं, इसी तरह से कुछ पैकेट्स, कुछ वेसिकल्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन में। ये अंदर से पूरी स्मूथ नहीं है, उनको हम पेरिफेरल रेटिकुलम्स बोलते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन के बारे में था। ओके, सो मेम्ब्रेन थिकनेस इज इंपॉर्टेंट। 60 बोथ ऑफ द मेम्ब्रेन्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज 100 एंगस्ट्रॉम थिक। स्ट्रोमा की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रोमा में बहुत सारी चीजें हैं। स्ट्रोमा में मेनली बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। अप्रोक्सीमेटली 50% स्ट्रोमा तो प्रोटीन से ही बना होता है। ठीक है, 50% स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होंगे। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शंस होती हैं, C3 के लिए बहुत सारे एंजाइम चाहिए। ठीक है, आपका जो है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम चाहिए, कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए, आइसोमरेज एंजाइम चाहिए, म्यूटेज एंजाइम चाहिए। तो बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम आयंस, जिंक आयंस, क्योंकि जो जो फोटोसिंथेसिस में चाहिए, क्लोरीन आयंस, वो सब कहां पे होंगे? स्ट्रोमा के अंदर होंगे। तो आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा आपका पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो ऑल्दो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? थैलेकोइड्स के साथ। बट पिगमेंट्स का कुछ पार्ट स्ट्रोमा में भी होता है। और क्या है स्ट्रोमा के अंदर? चलिए मैं रफ कर देता हूं इसको, क्योंकि हम अब कंपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है स्ट्रोमा के अंदर? खुद ग्रेनम स्ट्रोमा के अंदर है, डीएनए स्ट्रोमा के अंदर है, राइबोसोम स्ट्रोमा में है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स स्ट्रोमा में है, so these are all components. थैलेकॉइड लैमेले भी स्ट्रोमा में है। ठीक है, these are the all components of the stroma. इंडिविजुअली थैलेकॉइड की मैं बात करूं तो थाइलेकॉइड भी बेटा ऐसे होता है, मेम्ब्रेन होती है थैलेकॉइड की। थैलेकॉइड में सेंटर में तो ल्यूमन है, इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में ATPase मोटर होती है। इन मोटर का इंपॉर्टेंस आपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पढ़ा होगा, हम फोटोसिंथेसिस में यहां भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ATPase मोटर होते हैं। ये क्या करते हैं? जब प्रोटॉन इनके अंदर से पंप होते हैं बाहर, ठीक है, पहले तो प्रोटॉन बाहर चले गए, प्रोटॉन्स जब मूव होते हैं तो बेटा एटीपी मोटर के थ्रू ही मूव होते हैं। ठीक है, उन प्रोटॉन्स से मोटर क्या होती है? मूव होती है, मूवमेंट होती है। ये पंप जो है घूमेगा और एडीपी और पीआई को मर्ज करके, एडेनोसिन डायोस फॉस्फेट और फॉस्फेट को मर्ज करके एटीपी बनाते हैं। इस तरह से एटीपीज बनते हैं लाइट रिएक्शंस में भी। फोटोसिंथेसिस अपनी एनर्जी खुद बनाता है, लाइट रिएक्शन में एनर्जी भी बनती है और ऑक्सीजन गैस भी बनती है। ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट है, एनर्जी यूज होती है डार्क रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दो फेज है। तो एटीपी मोटर होती है, एटीपी मोटर को कभी मैं डिटेल में बताऊंगा, ये क्लोरोप्लास्ट का पार्ट नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है या रेस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक है, एटीपी मोटर के अलावा बेटा फोटो सिस्टम होता है, PS2, PS1, फोटो सिस्टम 1। ठीक है, अब मेनली लाइट रिएक्शंस की साइट है ना, तो थैलेकॉइड है मेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसी की कैरिंग साइट है ये। ठीक है, PS2 होते हैं, PS1 होते हैं। आपने अगर लाइट रिएक्शंस पढ़ी हो फोटोसिंथेसिस में, बार बार देखिए वही पोर्शन आएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मेन रोल है क्लोरोप्लास्ट का। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे फियोफाइटिन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स हैं। प्रोटॉन कैरियर प्रोटीन्स भी होते हैं, फेरेडॉक्सिन, प्लास्टोसाइनिन। ऑल्दो प्लास्टोसाइनिन PS1 के ऊपर होता है, फेरेडॉक्सिन नीचे होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरियर प्रोटीन्स हैं और कुछ फोटो सिस्टम्स हैं जो लाइट को एक्सेप्ट करते हैं। लाइट एक्सेप्ट करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू क्या करते हैं? एनर्जी बना लेते हैं। किसके लिए? डार्क रिएक्शंस के लिए। और ऑक्सीजन गैस जो है वो भी रिलीज होती है, क्योंकि ल्यूमन के अंदर वाटर का ब्रेकडाउन होता है। वाटर ब्रेकडाउन इनटू 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोटॉन बैलेंस करने के काम आते हैं, यहाँ एनर्जी बनाने के। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं PS2 उसको। ठीक है, आप केवल ये याद रखेंगे कि थैलेकॉइड में क्या क्या है। थैलेकॉइड में फोटो सिस्टम्स हैं,
थैलेकॉइड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरियर प्रोटीन्स हैं। अब फोटोसिस्टम्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी हैं, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं बेटा 3, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सेल बायो है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैलेकॉइड हमें पता है कहां है, स्ट्रोमा में है। थैलेकॉइड क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है लाइट रिएक्शन के लिए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैरियर प्रोटीन है जो फॉस्फोराइलेशन में, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक में काम आते हैं। पूरी एक रिएक्शन होती है ना, फोटोसिस्टम 2 के पास लाइट आई, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एक्साइट हुए, उन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करा वाटर ने और आगे वो चले जाते हैं। पूरी चेन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो सारी थैलेकॉइड में ही होती है, मेम्ब्रेन में, इसलिए हम समझ रहे हैं। फिर पिगमेंट्स की मैं बात करूं, फोटोसिस्टम के अंदर पिगमेंट है, ठीक है। पिगमेंट का क्या एक रिलेशन होता है कि एक तो होता है रिएक्शन सेंटर, सेंटर में प्रेजेंट होता है बेटे क्लोरोफिल, ठीक है। सारी लाइट क्लोरोफिल पे ना आ जाए इसलिए कुछ एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, ठीक है। एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन होते हैं पैकेट्स में इस तरह से, तो रिएक्शन सेंटर के अलावा ये जो एक्सेसरी, ये जो सहायक पिगमेंट है, इनको बोला जाता है एक्सेसरी पिगमेंट या एंटेना। तीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल सबसे मेन, उसको सराउंड करते हुए पिगमेंट जो हेल्प कर रहे हैं, जो सारी की सारी लाइट क्लोरोफिल पे नहीं आने दे रहे, कुछ लाइट अपने पास भी रख रहे हैं, फिर उसको बैलेंस करके आगे भेज रहे हैं ताकि क्लोरोफिल एकदम से फोटोऑक्सीडाइज ना हो जाए, ठीक है। ये मेन रोल है एक्सेसरी पिगमेंट्स का, कैरोटिनॉइड्स का और फाइकोबिलिन्स का। तो एक्सेसरी पिगमेंट भी प्रेजेंट है जिनको एंटीना बोलते हैं, और फिर कंप्लीट को एक्सेसरी पिगमेंट्स प्लस एक्सेसरी पिगमेंट प्लस रिएक्शन सेंटर को मिलके क्वांटोसोम बोला जाता है। क्वांटोसोम, क्वांटोसोम में क्या है, क्लोरोफिल भी है और एक्सेसरी पिगमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैरियर प्रोटीन के अलावा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से 3 पिगमेंट जिनको क्वांटोसोम बोला जाता है, इस तरह से अरेंज है, रिएक्शन सेंटर और सराउंडिंग पिगमेंट एंटीना। अब पिगमेंट्स को क्विकली डिस्कस करता हूं मैं, ठीक है। ज़ैंथोफिल क्या अभी पता चल जाएगा आपको। पहला पिगमेंट है बेटे क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल चीफ पिगमेंट है जो काम आता है किसके, फोटोसिंथेसिस के। डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई एंड रिसेंटली डिस्कवर्ड एफ ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्लोरोफिल होते हैं बैक्टीरिया में, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन, देखिए क्लोरोफिल ए इस दुनिया में जितने भी प्लांट, एल्गी हैं, सब में मिलता है, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल ए तो सब में मिलता है। क्लोरोफिल बी, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं आपको, आप रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में देख लीजिएगा कौन सा किस में होता है, मैं बोल रहा हूं। क्लोरोफिल बी होता है हाइयर प्लांट्स में और ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफिल बी ही ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ए तो सब में होता है, ठीक है। बी मेन क्लोरोफिल है जो हाइयर प्लांट्स में, लाइक एंजियोस्पर्म जितने भी हैं, और ग्रीन एल्गी में, ठीक है। प्लांट के अलावा एल्गी भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, आप ध्यान रखेंगे, और ज्यादा पार्ट जो है वो एल्गी का ही है। इस दुनिया में जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें मेजर पार्ट एल्गी का है, ना कि प्लांट्स का। क्लोरोफिल सी होता है फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी में, ठीक है। क्लोरोफिल डी होता है रेड एल्गी में। अब रेड एल्गी में केवल क्लोरोफिल डी नहीं है, क्लोरोफिल है तो वहां क्लोरोफिल डी है, ठीक है। क्लोरोफिल ए तो सब कहीं है। क्लोरोफिल ई होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन, इनको जनरली ई बोल दिया जाता है। और क्लोरोफिल एफ एक रिसेंटली डिस्कवर्ड क्लोरोफिल है जो होता है साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है क्लोरोफिल एफ। तो क्लोरोफिल जो है वो चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है बेटा C55H72O5N4Mg। एक मैग्नीशियम होता है, 4 नाइट्रोजन, 5 ऑक्सीजन, 72 हाइड्रोजन और 55 कार्बन, ठीक है। किस तरह से होती है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ऑल्दो आपको इनका स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है, मैं क्विकली बता देता हूं। इस तरह से मैग्नीशियम होता है सेंटर में, 4 नाइट्रोजन होते हैं, पायरोल रिंग्स,
पायरोल रिंग्स के आउटर कार्बन नंबर को बेटा काउंट किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 रिंग है, आउटर्स को हमने काउंट कर लिया। तो थर्ड जो कार्बन है इस पे मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल, ठीक है। और 7th कार्बन से एक टेल होती है 20 कार्बन की, 39 हाइड्रोजन की और OH, ये फॉर्मूला होता है टेल का, C20H39OH, ये फाइटोल टेल होती है। तो दो पार्ट हो गए, एक पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन हेड। क्लोरोफिल की दो स्ट्रक्चर होती है, एक हेड होता है हेड, ठीक है, और दूसरा फाइटोल टेल। फाइटोल टेल लिपिड की बनी है, ये इसको इनसोल्यूबल बनाती है पिगमेंट को, ठीक है। क्लोरोफिल इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल क्या है, भाई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, दो चीजों से बना है, हेड से और टेल से। हेड में पायरोल रिंग होती है, पोरफायरिन है ये, ठीक है, हीमोग्लोबिन की तरह, हीमोग्लोबिन भी पोरफायरिन होता है। और टेल है, टेल निकलती है 7वीं कार्बन से, चौथी पायरोल रिंग 7वां कार्बन, ये है बेटे पायरोल रिंग, नाइट्रोजन। ये आउटर को हम काउंट कर रहे हैं 1 2 फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन। तो यहां फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th। तो चौथी पायरोल रिंग का 7th कार्बन से टेल निकलती है, C20H39OH, ठीक है। बाकी बचे हुए जितने भी हैं C55H72O5N4Mg में से वो आपके हेड में होंगे, ठीक है। दिस इज क्लोरोफिल। फिर सेकंड पिगमेंट है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स होते हैं बेटा ऑरेंज और येलो कलर पिगमेंट्स, येलो एंड ऑरेंज। कैरोटिनॉइड्स के दो टाइप हैं, एक बच्ची पूछ रही थी जेंथोफिल क्या है, तो कैरोटिनॉइड्स होते हैं बेटा कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन होते हैं ऑरेंज कलर के और जेंथोफिल होते हैं येलो कलर के। तो ये क्या है आपके, ये हेल्पिंग पिगमेंट है, एक्सेसरी पिगमेंट है, जो हेल्प करते हैं किसको, क्लोरोफिल को हेल्प करते हैं केमिकली, ठीक है। केमिकली ये क्या होते हैं, C40H56, ठीक है। कैरोटीन्स में ऑक्सीजन नहीं होती, C40H56। सेम यही फॉर्मूला होता है किसका, जेंथोफिल का, ऑक्सीजन और आ जाती है तो वहां होगा C40H56O2, दो ऑक्सीजन और आ जाती है। आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं बेटा ये, इस तरह से लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, CH2 CH3। आयरन रिंग्स होती है इनके मार्जिन्स पे, इस तरह से ये केमिकल स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, 40 कार्बन होते हैं। अगर ऑक्सीजन आ जाए तो हो जाते हैं जेंथोफिल, ऑक्सीजन नहीं है तो कैरोटीन है। ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन इज दी जेंथोफिल्स। हायर प्लांट्स में कहां मिलेंगे, क्लोरोफिल के साथ मिलेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो करते ही करते हैं, ये जो आपके कैरोटिनॉइड्स हैं ये फोटोसिंथेसिस तो करते ही करते हैं, प्लस ये कलर भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट पार्ट्स को। लाइकोपीन, टमाटर लाल क्यों है, कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन, गाजर जो होती है उसका कैरेट नाम क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन। फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, येलो एल्गी जो होती है उनके अंदर या ब्राउन एल्गी के अंदर फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट होता है, वो जेंथोफिल है। तो इस तरह से ये पिगमेंट प्लांट पार्ट्स को कलर भी देते हैं और फोटोसिंथेसिस भी कराते हैं, कैरोटीन, जेंथोफिल्स। थर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, थर्ड है फाइकोबिलिन्स। ठीक है, फाइकोबिलिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, बाकी सब इनसोल्यूबल थे, कैरोटिनॉइड्स भी वाटर इनसोल्यूबल थे, ये वाटर सोल्यूबल है क्योंकि ये क्लोरोफिल के जैसे ही हैं, सेम लाइक क्लोरोफिल, बट एक तो इनके अंदर सेंटर में मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है। क्लोरोफिल में सेंटर में मैग्नीशियम था, इसमें नहीं है, इसमें पायरोल रिंग्स हैं। पर वो आपस में अटैच नहीं है, यानी सेंटर में मैग्नीशियम नहीं है, वो मीथेन ब्रिजेस से अटैच हैं, उनकी पायरोल रिंग्स आपस में अटैच हैं, सेंटर में मैग्नीशियम नहीं है और कोई भी फाइटोल चेन नहीं है, ठीक है। बाकी सब ये क्लोरोफिल के जैसा ही है। फाइकोबिलिन जो होते हैं ना, ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, तो ये मेनली एल्गी में मिलते हैं। एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें क्लोरोफिल तो है ही है, उसके साथ फाइकोबिलिन ज्यादा है, ठीक है। जबकि हायर प्लांट में फाइकोबिलिन नहीं, कम होते हैं, होते तो हैं बट कम होते हैं।
तो फाइकोबिलिन जैसे कि फाइकोसाइनिन, एग्जांपल बता रहा हूं, फाइकोसाइनिन ये कहां मिलता है? साइनोबैक्टीरिया में। नॉस्टॉक में भी मैंने बताया था, याद हो तो आपको, ठीक है। और फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन भी रेड एल्गी में मिलता है, फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में पैकेट्स की फॉर्म में अरेंज है। ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन, तो यहाँ स्ट्रोमा के अंदर भी कुछ पार्ट होता है और कुछ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। इन पैकेट्स को हम बोलते हैं बेटा फाइकोबिलिसोम्स, फाइकोबिलिसोम्स। जिन पैकेट्स में फाइकोबिलिन्स मिलते हैं उनको फाइकोबिलिसोम्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पिगमेंट भी होते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और उसके अलावा होता है डीएनए। सो द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कंप्लीटेड. Next we will discuss the function and semi-autonomous properties of the chlorophyll.